یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر، پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ رانی معاملے کی جے پی سی سے تحقیقات کرانے کے مطالبے اور دیگر معاملات پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج 12ویں روز بھی متاثر۔ دہشت گردی اور اس کی مالی معاونت بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال۔ یو ٹی میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کا صحت اور طبی تعلیم کے سیکریٹری بھوپیندر کمار نے لیا جائزہ، اور وادی میں کھادوں کی مناسب سپلائی کو یقینی بنانے کے متعلقین کو زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈھلو کی واضح ہدایات۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اڈانی گروپ معاملے کی ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے تحقیقات کے اپوزیشن کے مطالبے اور دیگر معاملات پر ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوران یہ لگاتار 12واں دن ہے جب ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ آئی ہے۔ شورغل کے درمیان لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا میں جب دوپہر 12 بجے تک کے لیے کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے اور دیگر ارکان سمیت اپوزیشن ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے اور اڈانی گروپ معاملے کی ایک جے پی سی سے تحقیقات کرانے کے اپنے مطالبے پر نعرے لگانے لگے۔ ٹی ایم سی، جے ڈی یو، شیو سینا، یو بی ٹی اور دیگر ارکان سمیت اپوزیشن ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ شورغل کے دوران پریزائڈنگ آفیسر نے مظاہرہ کرنے والے ارکان سے زور دے کر کہا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے جائیں۔ صدرنشین کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اس مہینے کی 31 تاریخ تک ایوان کا اجلاس نہیں ہوگا۔ شورغل کے دوران پریزائڈنگ آفیسر نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ ایوان کی اب اگلی نشست 3 اپریل کو ہوگی۔ لوک سبھا نے آج کمپٹیشن امینڈمنٹ بل 2022 بغیر بحث کے منظور کر لیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ہنگامہ آرائی کے درمیان بل کو ایوان میں پیش کیا۔ یہ بل مسابقتی ایکٹ 2002 میں ترمیم سے متعلق ہے تاکہ لین دین کی قدر کی بنیاد پر انضمام اور حصول کو منظم کیا جا سکے۔ بل میں شرط رکھی گئی ہے کہ 2000 کروڑ روپے سے زیادہ کے لین دین کے لیے مسابقتی کمیشن آف انڈیا کی منظوری درکار ہوگی۔ بل میں سی سی آئی کے لیے اس طرح کے لین دین پر آرڈر پاس کرنے کی ٹائم لائن کو 210 دن سے کم کر کے 150 دن کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ یہ بل مقابلہ جاتی معاہدوں اور غالب پوزیشن کے غلط استعمال کی تحقیقات کے تیز تر حل کے لیے تصفیہ اور عزم کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ بل اگست 2022 میں لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا اور اسی مہینے میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا۔ قائمہ کمیٹی نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ بھارتی ریلوے نے 7 اگست 2020 کو اپنے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں 167 راستوں پر تقریباً 2364 کسان ریل خدمات چلائی ہیں۔ یہ اطلاع ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔ انہوں نے کہا کہ کسان ریل خدمات ریلوے کی طرف سے شیڈول خدمات کے ساتھ ساتھ مانگ کی بنیاد پر چلائی جاتی ہیں۔ کسان ریل کے ذریعے پھلوں اور سبزیوں کی نقل و حمل کے لیے 2020-21 اور 2021-22 کے دوران فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی وزارت کی طرف سے کرائے میں 50% سبسڈی دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے سبسڈی کو گزشتہ سال 1 اپریل سے بند کر دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال نے کہا کہ دہشت گردی اپنی تمام شکلوں میں اور اس کی مالی معاونت بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی کوئی بھی کارروائی خواہ اس کا محرک کچھ بھی ہو بلا جواز ہے۔ دوال نے یہ بات نئی دلی میں ہندوستان کی میزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے رکن ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں NSAs کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان بین الاقوامی شمالی جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور INSTC کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور INSTC کے فریم ورک میں
चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जून 2017 में एससीओ का रुकन बना था, लेकिन एससीओ ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात कई सदियों पुराने चले गए हैं। अजीत डोवाल ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम बाहमी खदशात के मसले को हल करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। इजलास में वस्ती एशियाई ममालिक के कई आला सतही मंदुबीन ने ज़ाती तौर पर शिरकत की। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और महकमे सेहत और तिब्बी तालीम के तमाम शराकतदारों के साथ इस वबाई मर्ज से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की। मिशन डायरेक्टर कौमी हेल्थ मिशन जम्मू व कश्मीर आयुषी सुधन ने जम्मू व कश्मीर यूटी में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में एक मुख्तसर प्रेजेंटेशन देने के अलावा जम्मू व कश्मीर यूटी में कोविड मामलात, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के मंजरनामे की तस्वीर पेश की। मीटिंग में जानकारी दी गई कि मुल्क भर में यौमिया मुस्बत मामलात में इजाफे का रुझान है, जिसमें जम्मू व कश्मीर यूटी भी शामिल है। सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम ने तमाम अफसरों को चौकस रहने और उभरती हुई सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने जीएमसी के प्रिंसिपलों और तमाम चीफ मेडिकल अफसरों को सेहत सहूलत में अलग फ्लू क्लिनिक कायम करने और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलात की जांच में इजाफे पर तवज्जो मरकूज करें। सेक्रेटरी मौसूफ ने तमाम मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो 10 अप्रैल 2023 को जम्मू व कश्मीर यूटी भर में तमाम सेहत सहूलियात पर यकसा तौर पर मॉक ड्रिल शुरू करें, ताकि ऑक्सीजन प्लांट्स पर खुसूसी तवज्जो से तमाम तिबी मराकज़ में कोविड मैनेजमेंट, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक्स और इंसानी वसाइल के लिए ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाया जा सके। महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल ढुलू ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर वादी में खादों की सप्लाई और मेवे से भरी ट्रकों को वादी से बाहर ले जाने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने खादों से लदी गाड़ियों की आवाजाही को तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने कश्मीर से मेवे से भरी ट्रकों को भी तरजीही बुनियादों पर आगे जाने के लिए हिदायत दी। अटल ढुलू ने आने वाले सब्जियों के मौसम के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सब्जियों से भरी गाड़ियों को सबसे पहले छोड़ने की हिदायत दी। मीटिंग में मौजूद आईजीपी ट्रैफिक ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन तमाम अहकामात को अमली जामा पहनाया जाएगा। एआरआई एंड ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने आज कोलगाम जिले के दौरे के दौरान तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। डीडीसी, बीडीसी और पंचायत मेंबरान की एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल और मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्हें 2014 के तबाहकुन सैलाब के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें वैशो दरिया पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इस्तदा की, ताकि मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि पंचायती राज इदारे जम्मू व कश्मीर की तरक्की और स्कीमों की अमलावरी में एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि पंचायत राज इदारों के तमाम तरक्याती मामलात को हल किया जाएगा। बाद में उन्होंने आड़ी गतनों और जंगलपोरा के फ्लड प्रोटेक्शन बांध का दौरा किया और उन्हें बताया गया कि ये बांध 5 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं, जिसे कई देहात सैलाबी खतरात से महफूज बन गए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. भिदूरी ने आज आने वाले शब कद्र और ईद उल फित्र के सिलसिले में श्रीनगर की मसाजिद और जियारतगाहों का दौरा किया। उनके हमरा एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान भी थे। कमिश्नर मौसूफ ने इन मसाजिद और जियारतगाहों में बिजली और पीने के पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। उन्होंने दरगाह हजरत बल, जियारत दस्तगीर साहब और इमाम बाड़ा जड़ीबल में चरागाह करने के लिए हिदायत दी। उन्होंने दरगाह हजरत बल मैनेजमेंट कमेटी और एसएमसी से तलकीन की कि वो जियारतगाह के इहाते में खराब शुदा आबशारों को काबिल कार बनाने के लिए फौरी इकदाम उठाएं।
उन्होंने जियारत दस्तगीर साहब खानियार में तजदीद कारी के काम में सुरत लाने के साथ साथ वहां पर ख्वातीन के लिए एक अलहदा वजू खाना बनाने की भी हिदायत दी। कमिश्नर मौसूफ ने PDD और PHE महकमे के अमले को बिला खलल बिजली और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी कहा। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने और प्राइवेट कंपनियों के साथ तरबियत और जॉब प्लेसमेंट का मौका देने की गर्ज से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजीबाग श्रीनगर में आज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर श्रीनगर की तरफ से एक रोजा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट J&K निसार अहमद वानी ने किया। मेले में तकरीबन 22 प्राइवेट कंपनियों और स्किल डेवलपमेंट तंजीमों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ने नौजवानों से ताकीद की कि वो आगे आकर सरकार की तरफ से मुहैया करदा स्कीम से इस्तेफादा करें। मेले के दौरान 24 बेरोजगार नौजवानों को मौके पर ही ऑफर लेटर्स दी गई। श्रीनगर में आज महकमे गुंचा ऑपरेशन की यूटी सतह की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग महकमे के DG मंजूर अहमद कादरी की सदारत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में साल 2023-24, 24-25 और 25-26 के लिए सिलिक समाग्रा 2 के एक्शन प्लानों को मंजूरी देने के लिए तबादले ख्याल किया गया ताकि सेरी कल्चर से जुड़े किसान बिरादरी की मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। मीटिंग में प्लान में रखे गए 40 करोड़ रुपए के बजट पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया कि सेरी कल्चर के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए यूटी के 5157 अफराद को फायदा पहुंचेगा। कमेटी ने प्लान को मंजूरी दी और साथ ही इसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड मरकजी टेक्सटाइल्स की वजारत को रकूमत के लिए भेज दिया गया। डिप्टी कमिश्नर भांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने अफसरान की एक मीटिंग में रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत तरक्याती प्रोजेक्टों की अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग में बर्फ से ढकी गुरेज वादी में तालीम, सेहत, हुनरमंदी की तरक्की, एनिमल हस्बेंड्री और ज़राअत शोबे की तरक्याती ज़रूरियात पर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने गुरेज और बांडीपोरा में कई स्कूलों में बुनियादी ढांचे की तामीर के अलावा कई सड़कों की तामीर तजदीद और मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी का भी जायजा लिया। उन्होंने महकमे तालीम के अफसरान को भी हिदायत दी कि वो RR प्लान के तहत दरदस्त ली गई कामों को जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने खित्ते में बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम जमहूरियत से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में रहनुमाओं की सतह के एक मुकम्मल इजलास से वर्चुअल वसीले से खिताब कर रहे हैं। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी जनूबी कोरिया के सदर यून सुक यूल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद जमहूरियतों को मजीद जिम्मेदार और हालात का सामना करने का अहल बनाना और ऐसे शराकतदारों की एक वसी बरादरी तश्कील देना है जो आलमी सतह पर जमहूरियत की तजदीद के पाबंद हों। और अब आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाअत करें तबसरा।